Good morning, dear students. I'm Ms. Rita Sehgal, your economics teacher. I hope you all are doing well. And today, as you already know, we have started with class 11th economics and we are studying introduction to microeconomics. In this series, first chapter we have already done, and today we are going to start the new chapter, that is central problems of an economy. Let's start. This is chapter 2, central problems of an economy. The objective of this part of video, what are the things that you will be able to answer after watching this video, is what is an economic problem, what causes economic problem, central problem of an economy, and what are these central problems. These are what to produce, how to produce, and for whom to produce, and then solution of these central problems in different economies. Before that, let's have a quick recap of the topics that we have studied in the chapter number 1. So firstly, we studied about the economics. What is economics? So in the economics, we studies economics is a social science that studies how human wants are satisfied by using scarce resources which have alternative uses, right? So economics is a science. So what is economics? Economics is a science. It is a science and it studies, what does it studies? It studies human behavior. Okay, and human behavior in relation to what? When scarce resources are allocated for unlimited wants and in such a way so that an individual can maximize their satisfaction, producer can maximize their profit, and society can maximize their social welfare. Then we studied various type of economics, microeconomics, macroeconomics, and we also studied positive economics and normative economics. And then we also studied what is an economy and what are different types of economies, right? Second thing that we studied is what is economy. Economy is a system by which people of an area earn their living. So what is economy? Economy is a system by which people of an area earn their living. एक जगह के लोग या किसी कंट्री के किसी भी रीजन के लोग अपनी लिविंग के लिए क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमी. देन वी स्टडीड नेचर ऑफ एन इकोनॉमी. वी स्टडीड नेचर कि एग्रीकल्चर है या इकोनॉमी है. इफ़ मोस्ट ऑफ द people are engaged in agriculture economy, then it is a agricultural activities, that it is an agricultural economy. If most of the population is engaged in industrial activity, then it is industrial economy. This we have studied, and we have studied various types of economy also, that is centrally planned economy. Types of economy हमने पढ़ा है, that is first one is centrally planned economy, where the major decisions are taken by a central authority or a government body. Then free economy, where producers are free to produce any goods and services depending upon the demand of the market. Then the third thing that we studied is mixed economy. Mostly all the economies over the world are mixed economies, that is the mixture of or the combination of public sector and private sector, right? So now we are coming to our chapter number 2, central problems of an economy. So let's move towards the first question, first objective of this part, that is what is economic problem. So all societies face the economic problem, which is the problem of how to make the use of limited resources or scarce means in such a way so that needs and wants of people can be satisfied. See, economic problem क्या है? We all know कि resources are limited and scarce. Economic problem exist क्यों करती है? क्योंकि resources scarce हैं
and needs and wants of people are endless, they are unlimited, and the resources that are available to satisfy these needs and wants, they are limited. Every resource, see, for the time being, like everything can be purchased with the money, so we will take resource, main resource as money only. किसी के पास unlimited money तो नहीं होता, सबके पास limited money है, and the wants that can be satisfied with this money is unlimited. So what we have to do, we have to make choice. So the problem of choice is the economic problem. Okay, what is the economic problem? Problem of choice is the economic problem. This is the main problem. And why problem of choice arises? Because resources are limited, humans needs and wants are unlimited, and the resources that are available to satisfy these needs and wants are unlimited. Am I clear? Focus on the picture here. Limited scarce resources, and we have to use these resources to produce goods and services to satisfy unlimited wants and needs. So economic problem is to match this limited resources to unlimited wants and needs. इन limited resources को unlimited wants and needs में कैसे allocate किया जाए so that maximum wants and needs can be satisfied. This is the economic problem. क्या प्रॉब्लम है? चॉइस करना है कि किस वांट को या किस नीड को सेटिस्फाई करना है. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी नीड्स एंड वांट्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. ठीक है, और उसके लिए हमें चॉइस करनी पड़ेगी. तो चॉइस इज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम. वी से रिसोर्सेज आर लिमिटेड. So how resources are limited? Resources are limited in two ways. And what are these two ways? Resources are limited in two ways. Limited in physical quantity, कि quantity ही limited है. For example, in the case of land, आपको पता है कि land is in the limited quantity. हम land को extend नहीं कर सकते. हाँ, गाँव and villages के आसपास जो waste land है, हम एक बार उसको हम usable बना सकते हैं. But after using that, then there is no further land to expand or to put it into use. So physical quantity में resource का limited होना. Resources दो तरह से limited होते हैं, एक limited in physical quantity, एक limited in use. So physical quantity में जब resources की availability ही कम होती है, जो fixed quantity में resources available हैं. ठीक है, it means resources are available in fixed quantity. Then we have resources in limited in use. For example, in the case of labor and machinery, कि एक टाइम पे ये एक ही काम कर सकते हैं. ठीक है, मशीनरी है या लेबर है, एक टाइम पे आप इसको एक ही एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हो. राइट, तो इनका यूज लिमिटेड हो गया. सो रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन टू वेज, फिक्स्ड क्वांटिटी एंड लिमिटेड इन यूज. वी लर्न दैट एवरी इकोनॉमी स्ट्राइव टू यूज इट्स limited resources in such a way so that maximum needs and wants can be satisfied. Still, as resources are unlimited, it is impossible for an economy to produce everything for the each individual. हर इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज जो होते हैं लिमिटेड होते हैं. किसी भी कंट्री के पास, किसी कंट्री की गवर्नमेंट के पास जो उनके अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, लाइक लिमिटेड लैंड लिमिटेड है, number of people, those who are working or those who can work, they are limited. So हर इकोनॉमी के पास जो resources हैं वो limited हैं. So हर इकोनॉमी they cannot produce everything, वो सब कुछ produce नहीं कर सकते जो लोगों की requirement है, जो लोग चाहते हैं, उनकी हर need को वो satisfy नहीं कर सकते. क्योंकि resources limited हैं. It becomes necessary for every economy, तो हर इकोनॉमी के लिए ये बात ज़रूरी हो जाती है कि दे हैव टू मेक अ चॉइस सो दैट जो उनकी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंटली यूज हो सके. एंड व्हाट आर दिस रिसोर्सेज? दीज आर लैंड, लेबर एंड कैपिटल. सो हर इकोनॉमी को ये चॉइस करना पड़ता है कि जो भी उनके पास लैंड, लेबर एंड कैपिटल है उसको वो एफिशिएंटली यूज करे ताकि उनके कोई भी रिसोर्सेज वेस्ट ना होए. For example, the economy has to decide how much of the resources are used for the development of industries and how much of the resources should be used for the development of agriculture. ठीक है, अब ये इकोनॉमी को बहुत मुश्किल डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उनके सामने कि उनको अपने रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करना है ताकि
लैंड, लेबर एंड कैपिटल का एफिशिएंटली यूज हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल दे हैव टू डिसाइड हाउ मच रिसोर्सेज आर यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हाउ मच शुड बी यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। दस अब क्या होगा, अब रिसोर्सेज लिमिटेड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 लेबर अवेलेबल है, राइट। ये जस्ट एन एग्जांपल है कि हमारे पास जो 100 ही लेबर अवेलेबल है, इसमें से कितने लेबर इंडस्ट्रियल में जाए वर्क करने चाहिए, इंडस्ट्रीज में, एंड कितने जो हैं वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होने चाहिए, राइट। तो हमें इस सच भी उनको एलोकेट ऐसे करना है ताकि रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट ना हो। ओके, सो नाउ व्हाट happens, problem of choices arises and this problem is the economic problem. So resources को कैसे allocate किया जाए to different uses, that is called economic problem. क्योंकि लेबर है, जैसे हम नंबर ऑफ एक्टिविटीज में लेबर को इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट उनको किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है या वो लेबर हमें कहाँ एलोकेट करना है या रिसोर्स कहाँ एलोकेट करना है, दैट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम और द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आई होप आप अपना मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही दे सकते हो कि व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है, एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। वन एंड द सेम क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रीजन क्या है। तो रीजन सिंपल से है, वही अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड नीड्स, लिमिटेड और स्कार्स मीन्स रिसोर्सेज, limited or scarce resources and resources have alternative uses. wants unlimited है, resources limited है, और उन resources के alternative uses means एक ही resource को हम कई सारे कामों में use कर सकते हैं। तो किस काम के लिए यूज करना है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब वो हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमें ऐसे डिसाइड करना है ताकि रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज हो सके, सो दैट रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। ओके, so central problems of an economy, central problems are the main problems of an economy कि हर इकोनॉमी को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि किसी भी इकोनॉमी के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते। तो व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, अनलिमिटेड वांट्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स, दे क्रिएट सिचुएशन ऑफ स्कैरसिटी। Scarcity is a situation that is created by limited resources and unlimited wants. Okay, because of scarcity we have to make choice, हमें choice करना पड़ता है, और वो choice किस sense में करना है हमें, हम we are talking about the from the point of view of an economy, what to produce, how to produce and for whom to produce. We will study these 3 points in the detail. Let's move further. Rich or poor, developed or underdeveloped, every economy must face 3 central problems. किसी भी तरह की इकोनॉमी हो, ऐसा नहीं है कि यूएस की इकोनॉमी है, रिच इकोनॉमी है तो उनको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। सभी तरह की इकोनॉमीज को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इकोनॉमी, कौन सी इकोनॉमी, कितनी टाइप्स की इकोनॉमी हमारे पास, 3 टाइप्स की इकोनॉमी है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी एंड फ्री इकोनॉमी। ओके, तो किसी भी तरह की इकोनॉमी है, ये 3 प्रॉब्लम्स सभी इकोनॉमी को फेस करना पड़ता है क्योंकि किसी के पास भी अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है और ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन नीड्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। सो व्हाट आर दीज प्रॉब्लम, दीज आर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस। चलो अब इन तीनों पॉइंट्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हम हर चीज़ तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जितनी भी अवेलेबल चीज़ें हैं या जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती हैं हम सारी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकते। वी कैन नॉट प्रोड्यूस ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सो वी हैव टू डिसाइड कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी इट इज़ टू प्रोड्यूस। फॉर एग्जांपल कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और मिलिट्री गुड्स और डिफेंस गुड्स भी कह सकते हैं हम इसको। सो व्हाट आर द कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स होते हैं जो इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं, मशीनरी हो गया और टूल्स हो गए जो आगे इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। देन कंज्यूमर गुड्स जो हमारी डे टू डे कंज्यूमर गुड्स की कंज्यूमर की नीड्स को जो सेटिस्फाई करते हैं, दे आर कंज्यूमर गुड्स। एंड मिलिट्री गुड्स आर ऑल्सो कॉल्ड डिफेंस गुड्स, जैसे आर्म्स एंड एम्यूनिशन हो गया। ओके, नाउ तो फर्स्ट प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि प्रोड्यूस क्या करना है और किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। ओके, तो फर्स्टली द इकोनॉमी हैज टू डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड,
कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर गुड्स लाइक शुगर, क्लॉथ, घी आर टू प्रोड्यूस, and which of the capital goods like machines, tractors are to be produced, or defense goods like rifles, guns are to be produced. हम किस तरह की गुड्स को प्रोड्यूस करें, कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करें, कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करें और मिलिट्री गुड्स को प्रोड्यूस करें, और इन तीनों को किस किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाए. ओके, सो मूविंग फर्दर, when an economy has a taken decision as to what goods and services are to be produced, then it has to decide about its quantity, how much is to be produced, right? Okay, how much of consumer goods, how much of capital goods are to be produced. In such decisions, some sacrifices are required, because to produce more of one product with limited means, one has to produce less of other goods. What does it mean? कि suppose अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कंज्यूमर गुड्स, राइट, चलो गुड ए है, ये कंज्यूमर गुड है, एंड गुड बी है, ये कैपिटल गुड है. ओके, ये कंज्यूमर गुड्स हैं और ये कैपिटल गुड्स हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1000 kg शुगर प्रोड्यूस करते हैं और हम सेम 20 ट्रैक्टर्स बना सकते हैं. जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास अवेलेबल, उसमें अगर हम कंज्यूमर गुड्स बनाएं तो हम 1000 kg की प्रोडक्शन कर सकते हैं, और गुड भी उसके साथ 20 ट्रैक्टर्स की प्रोडक्शन हो सकती है. ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, यू हैव टू कीप इन माइंड कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. अब व्हाट इकोनॉमी डिसाइड्स कि नहीं, हमें कैपिटल गुड की कंजम्पशन को इंक्रीज करना पड़ेगा. तो व्हाट विल हैपन, मुझे गुड ए के रिसोर्सेज जो हैं वो थोड़े से गुड बी में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे. अगर मैं गुड ए के रिसोर्सेज कम कर देती हूँ तो 800 kg ही प्रोड्यूस कर सकती हूँ, और यहाँ पे अब 22 ट्रैक्टर्स मैं प्रोड्यूस कर सकती हूँ, राइट. एक इकोनॉमी में अगर मैंने लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से गुड्स ए के कुछ रिसोर्सेज गुड बी को ट्रांसफ़र कर दिए, तो गुड ए की प्रोडक्शन जो है वो पहले से कम हो गई, राइट, और गुड बी की बढ़ गई. तो ये सेक्रीफाइस हो गया. दिस इज द सेक्रीफाइस दैट अ इकोनॉमी हैज़ टू डू. ये 200 kg का जो डिफरेंस है, that is the sacrifice that is required to produce more of the one quantity with limited means and less of the other quantity. Understood? एक गुड की अगर हम प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं तो हमें दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन का कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसकी प्रोडक्शन को थोड़ा कम करना पड़ेगा. दैट इज द सेक्रीफाइस दैट द इकोनॉमी हैज़ टू मेक. ठीक है, बिकॉज टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन प्रोडक्ट विद लिमिटेड मीन्स वन हैज़ टू प्रोड्यूस लेस ऑफ अदर गुड्स. किसी भी एक गुड की कंजम्पशन बढ़ाने के लिए हमें दूसरे गुड्स की कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा. ओके, बिकॉज कम क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है. जो मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं मुझे उसी से मैनेज करना है, इधर उधर करके. गुड ए को थोड़ा दिया, गुड बी को थोड़ा दिया. अगर गुड बी की कंजम्पशन बढ़ानी है तो गुड ए से रिसोर्स लेके गुड बी को देना पड़ेगा, और गुड बी की कंजम्पशन अगर गुड ए की बढ़ानी है तो गुड बी के रिसोर्सेज मुझे लगाने पड़ेंगे. तो जहाँ भी मैं रिसोर्सेज को शिफ्ट करती हूँ दूसरे वाले गुड्स की प्रोडक्शन पे उसका असर पड़ता है, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है. Understood? So this is the decision that the economy has to make. What to produce में क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, ये दोनों ही पार्ट सेम पॉइंट के. नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस. जब हम हाउ टू प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं, वी आर डीलिंग विद द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, कि हमें किस तरह की टेक्नोलॉजी को प्रोडक्शन के लिए यूज करना चाहिए. बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज लेबर इंटेंसिव जिसमें लेबर यूज होती है ज़्यादा. ओके, देन कैपिटल इंटेंसिव जिसमें मशीनरी का यूज ज़्यादा होता है. अब व्हाट विल यू सजेस्ट कि अगर इंडियन इकोनॉमी है तो हमें कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव. अब इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेबर तो अवेलेबल है, और अगर हम लेबर इंटेंसिव यूज करते हैं तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी कुछ हद तक सॉल्व हो जाती है, राइट. तो इट विल डिफर फ्रॉम इकोनॉमी टू इकोनॉमी कि कौन सी इकोनॉमी कौन सा टेक्निक प्रेफर कर रही है फॉर हाउ टू प्रोड्यूस. सो हाउ टू प्रोड्यूस में वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ द टेक्निक्स. जो भी टेक्निक्स अवेलेबल हैं उसमें से इकोनॉमिकली कौन एफिशिएंट है, मीन्स कौन हमें क्या कहोगे, कौन हमें कॉस्टली नहीं पड़ रहा है. ठीक है,
एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपमेंट गोल। सोशल ऑब्जेक्टिव इन द सेंस, जैसे मैंने आपको इंडिया का एग्जांपल दिया कि अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करते हैं तो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। क्लियर? Then we have to ensure that economic resources of the country are fully utilized. country के resources जो हैं वो fully utilized है. Then what are the techniques? एक आपको hint मैंने पहले ही दिया है कि what are the techniques? Labor intensive technique and then capital intensive technique. अब labor intensive technique में क्या होता है? Labor is used more than the capital. और capital intensive technique में क्या होता है? Capital is used more than the labor. An economy must decide as to which technique is to be used in a given industry so that efficient production is obtained. efficient production के लिए कौन सी टेक्निक हमें यूज़ करनी चाहिए, ये इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है. एफिशिएंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कौन सी होती है? यहाँ पर हम एफिशिएंट की तो बात कर रहे हैं कि हमें वो टेक्निक यूज़ करनी है जिससे एफिशिएंट प्रोडक्शन हो. तो एफिशिएंट टेक्निक वो होती है विच यूजेस लीस्ट अमाउंट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज टू प्रोवाइड द सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट. ठीक है, जिससे हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो है कम से कम होनी चाहिए. कि स्कार्स रिसोर्सेज या लिमिटेड रिसोर्सेज कम से कम लगे. दोनों टेक्निक में हम दोनों टेक्निक को वे करेंगे कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करें या कैपिटल इंटेंसिव. तो वो टेक्निक यूज़ होगी जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेज का कम से कम यूज़ हो और आउटपुट जो है सेम आए. दोनों केसेस में कैपिटल से भी और लेबर से भी आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा आए लिमिटेड रिसोर्सेज का कम यूज़ करके. तो थर्ड क्वेश्चन दैट इज इन द फ्रंट ऑफ अस, इट इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस. इट इज़ रिलेटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स. कि जो हमने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं वो किसके लिए प्रोड्यूस किए हैं. फॉर होम टू प्रोड्यूस. एवरी इकोनॉमी हैज़ टू सेक्शन ऑफ सोसाइटी, रिच एंड पुअर. सोशल जस्टिस तभी होता है, सोसाइटी का वेलफेयर तभी होगा जब हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स जो हैं वो पुअर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. और इट वुड रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड प्रोमोट इक्वालिटी. अगर हम ऐसे गुड्स बना रहे हैं जो पुअर सेक्शन के लिए ज़्यादा है तो इससे क्या होगा, सोसाइटी में इनइक्वालिटी डिक्रीज होगी, इक्वालिटी इंक्रीज होगी. बट अगर गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा पुअर के लिए ही बनाए जाएंगे, राइट, अगर हम गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा पुअर के लिए ही बना रहे हैं तो देयर कॉस्ट विल बी लेस. जो प्रोड्यूसर उन गुड्स को बना रहे हैं उनके लिए लेस प्रॉफिट होगा. अब लेस प्रॉफिट मीन्स कि आगे उनकी इन्वेस्टमेंट कम होगी और इन्वेस्टमेंट कम होगी तो उनकी प्रोडक्शन कम होगी और that will lead to the low economic growth और low GDP growth. और मोreover अगर प्रोड्यूसर को ज़्यादा प्रॉफिट के केस में ज़्यादा प्रॉफिट का मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो भी वो प्रोडक्शन करने के लिए आगे मोटिवेट नहीं होंगे. ठीक है. अगर तो what we have read, if goods are produced for poor then producers will have less profit. प्रोड्यूसर को लेस प्रॉफिट क्यों होगा? क्योंकि हम पुअर सेक्शन के लिए गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं. पुअर सेक्शन के लिए गुड प्रोड्यूस करने का मीन्स है गुड के प्राइसेस जो हैं वो लेस होंगे, राइट. अगर लेस प्राइस हुए तो प्रोड्यूसर को प्रॉफिट लेस होगा और प्रॉफिट अगर प्रोड्यूसर को प्रॉफिट लेस होता है तो इन्वेस्टमेंट कम होगा. आगे उसके पास आगे इन्वेस्ट करने के लिए फर्दर अपनी प्रोडक्शन को ग्रो कराने के लिए मनी जो है वो कम अवेलेबल है, राइट. तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी जिससे कि अगेन प्रोडक्शन सफ़र करेगा और लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा. सी बेसिकली दिस इज अ इकोनॉमिक वर्क कैसे करती है. प्रोडक्शन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है और कंजम्पशन हो रहा है. दीज आर द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट इज डन. तो व्हाट हैपन, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस और कंज्यूमर से परचेज करके उसको कंज्यूम करता है. यहाँ से गुड्स ट्रेवल हो रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज और कंजम्पशन और कंज्यूमर से प्रोड्यूसर तक मनी ट्रेवल कर रहा है. जो कंज्यूमर ने परचेज किया है गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट मनी. तो व्हाट विल हैपन कि जब कंज्यूमर से इसके पास मनी आएगा, ठीक है, प्रोड्यूसर मोटिवेट होता है कि हाँ मेरे गुड्स की सेल हो रही है, मेरे गुड्स की डिमांड है ज़्यादा, तो वो और प्रोड्यूस करने के लिए अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए और मोटिवेटेड होता है. ठीक है. फिर ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, ज़्यादा. और जीडीपी क्या है? इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी. तो जीडीपी इंक्रीज करती है, कंट्री की या प्लेस की इकोनॉमिक वैल्यू इंक्रीज होती है और सेम वे ये साइकिल जो है ये चलता रहता है. ठीक है. इन दिस वे इकोनॉमी वर्क्स. बट अगर ये प्रोडक्शन जो है लो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए हो रहा है तो उसमें प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कम होगा. लेस प्रॉफिट का मीन्स लेस इन्वेस्टमेंट और लेस इन्वेस्टमेंट का मीन्स आगे
लेस प्रोडक्शन और लो जीडीपी ग्रोथ। तो इसलिए कि किस सेक्शन के लिए कितने गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, दैट इज ऑल्सो अ बिग चैलेंज इन द फ्रंट ऑफ एन इकोनॉमी, राइट। तो दैट इज वाई इन द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो मेन फोकस इज सोसाइटी वेलफेयर। सो वहाँ पे सोसाइटी का वेलफेयर या रिच सेक्शन का वेलफेयर जो है मेन मोटिव होता है, इसलिए जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होती है वहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी या गवर्नमेंट के हाथ में होती है, ताकि प्राइवेट सेक्टर उसका मिसयूज़ ना कर सके और लोगों को ईजिली अवेलेबल हो थिंग्स, ठीक है। तो वी हैव लर्न व्हाट आर द थ्री what is the central problem we have read, and what are the central problems कि इकोनॉमी के आगे what to produce, how to produce and for whom to produce। अब ये अलग अलग इकोनॉमी अपनी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती हैं, that we are going to read further। Solution of central problems in different economies। अब now we will see कि how capitalist economy or the market economy decides कि what to produce, how to produce or for whom to produce। Market economy is a free economy। It means producers are free to decide for what to produce, how to produce and for whom to produce, ठीक है। इसमें प्रोड्यूसर अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, इसमें गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करती, सारा कंट्रोल जो है प्रोड्यूसर्स के हाथ में है। दे आर फ्री टू डिसाइड। नाउ ऑन व्हाट बेसिस डू दे टेक देयर डिसीजन, अब वो उनके डिसीजन किस बेसिस पे होते हैं, लेट दिस वी विल रीड इट नाउ। कि एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है उनके डिसीजन कैसे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस इन द मार्केट। कि मार्केट कोई भी जहाँ पर भी एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का अगेंस्ट एनीथिंग और अगेंस्ट मनी, दैट इज द मार्केट। जरूरी नहीं है मार्केट इज नॉट ओनली अ फिजिकल लोकेशन कि हाँ ये मार्केट है, ये मार्केट है, नहीं। मार्केट ऐसे नाउ द होल वर्ल्ड इज अ ग्लोबल मार्केट, राइट। तो मार्केट जहाँ भी प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का अगेंस्ट समथिंग और द मनी, दैट थिंग इज दैट प्लेस और दैट सिचुएशन इज द मार्केट। So every economic activity in market economy is influenced by profit motive। So हर profit कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हर इकोनॉमिक एक्टिविटी के पीछे क्या मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है। प्रोड्यूसर्स को क्या चाहिए, मोर प्रॉफिट, ठीक है। तो वो प्रोड्यूस वही कमोडिटीज को प्रोड्यूस करना चाहता है जिसमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कब होता है, जब वो रिच सेक्शंस के लिए गुड्स प्रोड्यूस करे जो हाई प्राइसेस प्रोड्यूस दे सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। इसलिए ये लोग ऐसे ही गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसमें उनको हाई प्रॉफिट मिले। वर्कर्स ऐसी जॉब सेलेक्ट करते हैं जहां उनको हाई वेजेस या मैक्सिमम वेजेस मिलते हैं। कंज्यूमर्स बाय दोज गुड्स व्हिच प्रोवाइड हिम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज डिटरमाइंड। किसी भी कमोडिटी का प्राइस कैसे डिटरमाइंड होता है, ऑन द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड क्या है, जैसे किसी भी चीज़ की अगर डिमांड ज़्यादा है और उसकी सप्लाई लिमिटेड है तो उस चीज़ के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। और मार्केट में जब सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है एज़ कम्पेयर टू डिमांड, तो उन प्राइसेस को डिक्रीज़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर गुड्स की सेल ही नहीं हो रही है तो गुड्स की सेल को करने के लिए प्रोड्यूसर जो है अपने गुड्स की प्राइस को कम कर देते हैं ताकि कंज्यूमर उसको परचेज कर सके। तो मार्केट इकोनॉमी में गुड्स के प्राइस या किसी भी की प्रोडक्ट के प्राइस जो हैं वो डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन से डिफाइन होते हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का डिसीजन कैसे होता है इसमें, द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस दोज गुड्स विच ऑफर देम हाई प्रॉफिट्स। प्रोड्यूसर वही गुड प्रोड्यूस करेगा जो उसमें हाई प्रॉफिट हो। हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूसर वही टेक्निक यूज करेगा, वही टेक्नोलॉजी यूज करेगा जिसमें एफिशिएंसी तो ज़्यादा हो और कॉस्ट कम हो। क्यों, कॉस्ट कम होगी तभी उसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। फॉर whom to produce, for whom to produce, only for whom to produce, those who people who can afford to pay high price। उन्हीं के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं जो हाई प्राइस पे कर सकते हैं। पुअरर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी आर ऑफन इग्नोर्ड, उनको इग्नोर किया जाता है। उनकी सिचुएशन जो है इस तरह की इकोनॉमीज में पुअर सेक्शन की लोगों की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं होती, बहुत ही खराब सिचुएशन होती है, ठीक है। तो इस तरह की इकोनॉमी में जो है हमें एक बहुत बड़ा गल्फ, एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है बिटवीन द रिच एंड पुअर। सो अंडरस्टूड, इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और द मार्केट इकोनॉमी प्रोड्यूसर जो है खुद ही डिसाइड करते हैं कि उन्हें कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना है। और उस गुड के प्राइसेस कैसे डिटरमाइन होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द गुड्स। सपोज कि अगर गुड्स की डिमांड ज़्यादा है
और सप्लाई लिमिटेड है, तो प्रोड्यूस मीन्स कंज्यूमर इज रेडी टू पे हाई प्राइस, उसकी वो चाहता है वो गुड परचेज करना, तो अगर उसको हाई प्राइस पे भी मिलते हैं गुड्स तो वो उसको परचेज कर लेगा, राइट। तो उस प्रोड्यूसर उस चीज़ की प्राइस को बढ़ा देता है, क्यों? क्योंकि उसे प्रॉफिट अर्न करना है, तो अपनी गुड्स को ज़्यादा प्राइस पे बढ़ा देता है, कि ज़्यादा प्राइस पे सेल करता है, हाई प्राइस पे सेल करता है। बट प्रोड्यूसर जो है उसकी भी एक, कंज्यूमर जो है उसकी भी एक लिमिट है कि हाँ मैं इस प्राइस से ज़्यादा जो है इसकी इस गुड को इस लेवल से ज़्यादा हाई प्राइस पे परचेज नहीं करूँगा, ठीक है। तो जब प्राइस एक लिमिट से बढ़ जाते हैं तो कंज्यूमर उसकी डिमांड कम कर देता है, वो उसको यूज़ करना बंद कर देता है। अब मार्केट में क्या हुआ, चीज़ों की सप्लाई तो हो रही है बट लोग की डिमांड कम हो गई, लोगों ने उसको यूज़ करना कम कर दिया, ठीक है। तो अब क्या करेगा प्रोड्यूसर, उसको सेल तो करना ही है, तो वो अपने गुड्स के प्राइस को नीचे लाएगा जहाँ पे वो कंज्यूमर की डिमांड के साथ मैच कर सकता है। जो प्राइस कंज्यूमर उस प्रोडक्ट के लिए देने के लिए रेडी है, मैक्सिमम प्राइस, वो उस प्राइस से अपने प्रोडक्ट के प्राइस को मैच करता है, और इस तरह से प्रोडक्ट के प्राइस डिफाइन होते हैं एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। ओके, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमीज देखने हैं कैसे काम करती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहाँ पे पब्लिक वेलफेयर जो है वो मेन मोटिव होता है, मेन मोटिव होता है, राइट। इन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, decisions related to what, how and for whom to produce are taken by some central authority of the government। एक गवर्नमेंट बॉडी होती है जो ये इकोनॉमिक डिसीजंस जो हैं ये कौन लेता है, वो गवर्नमेंट बॉडी लेती है, और इसमें डिसीजन ऐसे लिए जाते हैं, सिर्फ एक ही मोटिव होता है, टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर, नॉट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ठीक है। तो चाइना की इकोनॉमी जो है हम देखेंगे दैट इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जहाँ पे जो मेन कंट्रोल जो है वो एक सेंट्रल बॉडी के हाथ में है। These goods and services will be produced with the central authority। एक सेंट्रल अथॉरिटी ही ये गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है जो कि सोसाइटी के लिए, और ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है दोज हु आर मोस्ट यूजफुल फॉर द सोसाइटी। वो टेक्निक यूज की जाती है डेट इज मोस्ट डिजायरेबल। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, सोसाइटी का वेलफेयर हमारा कैसे होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे, और वो तब होंगे जब हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ कैपिटल इंटेंसिव, जहाँ ज़्यादा लेबर यूज़ होती है, सो दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज रिड्यूस, ठीक है। Enough goods will be produced for poorer section of the society even when production of such goods is not profitable। पुअर सेक्शंस के लिए गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे चाहे वो प्रॉफिटेबल हो चाहे ना हो। तो सोशल जस्टिस जो मेन मोटिव होता है एज कंपेयर टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फ्री इकोनॉमी का मोटिव है, और सोशल जस्टिस जो है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मीनिंग है। ओके, नाउ द थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी डेट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों का मिक्सचर है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और फिक्स्ड फ्री इकोनॉमी का। ऑल ओवर द वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज आर मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, जिसमें मार्केट इकोनॉमीज के भी फीचर्स हैं और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज के भी फीचर हैं। सो ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो कि पुअर सेक्शन के लिए रिक्वायर्ड हैं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर इतना इन्वेस्ट करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए मोटिवेट नहीं होता क्योंकि वहाँ प्रॉफिट मार्जिन कम है, ऐसे गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन जो है वो गवर्नमेंट या एक सेंट्रल बॉडी के हाथ में होती है। ओके, सो यहाँ पे जो डिसीजंस हैं व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, दे आर टेकन बोथ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड एज वेल एज सोशल वेलफेयर। ओके, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे प्रोड्यूसर्स आर फ्री, वो डिसाइड कर सकते हैं अपने डिसीजन कि उन्हें क्या प्रोड्यूस करना है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट, चाहे जिससे उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे वो सोसाइटी की कंसीडर करके डिसीजंस लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इन इंडिया प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू यूज़ क्लोथ और स्टील टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, बट रेलवेज एक ऐसा मीडियम है जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इक्वली यूज़ करते हैं, तो उसका मिसयूज़ ना हो, हर सेक्शन के लिए वो अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल हो वो सर्विस, इसलिए उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एट नॉमिनल रेट्स, बहुत ही कम रेट पे गवर्नमेंट ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सो दैट पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी कैन अवेल देम, राइट। Briefly, in a mixed economy, the decisions relating to what, how and for whom to produce are neither left entirely to the market forces। मार्केट फोर्सेस कौन सी, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई के हाथ में नहीं है, और ना ही पूरी तरह से सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में है। यहाँ पे दोनों ही चीज़ें रोल प्ले करती हैं। यहाँ पे इस तरह की इकोनॉमी में हम पब्लिक सेक्टर भी पाएंगे और प्राइवेट सेक्टर भी पाएंगे, ठीक है।
तो ऐसे जो सोशल वेलफेयर के लिए रिक्वायर्ड है वो पब्लिक सेक्टर के हाथ में होगा, और जो प्रॉफिट या इकोनॉमी की ग्रोथ के एंगल से रिक्वायर्ड है, जिससे जीडीपी इंक्रीज हो या इकोनॉमी प्रॉफिटेबल हो, वो जो ऐसी चीज़ें जो हैं वो प्रॉफिट के प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के हाथ में होंगी या प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होंगी. ओके. So we have learned कि what are the various economic problems, central problem क्या है, और how various economies deal with it. So to illustrate and analyze the central problem, इन central problems को analyze करने के लिए economists जो हैं एक technique use करते हैं, and that is known as production possibility curve. Economics use this technique of production possibility curve, and इसको transformation curve और transformation line के नाम से भी जाना जाता है. Okay. And this production possibility curve I will explain in the next video. Okay, till then watch this video properly. If you have any doubt, we will discuss it in the online class, and till then wait for the next video. Stay at home, stay safe, stay healthy, take good care of yourself, and bye. See you in the next video.